Hello and namaskar. Welcome to the next episode of India Bounce Back. I really want to thank each of my viewer for such a lovely and amazing response. And today, uh, after two of the serious and wonderful interview, I have something special to you. And you might have guessed who I have as a guest today with me. But I really want you to still think what he's going to offer to us today. And I'm really, really glad that I have one of the amazing and the best comedian in the country today, Parvinder Singh ji, with us. Parvinder ji, thank you so much for joining with us. And I Thank really you. don't want to push more energy in the interview today because I know I have you on with me today in India Bounce Back. So Thank you, before sir. before I start, you have a big responsibility today that you need to really make this country smile. And out of all that negativity which is going around in the world today, and you just give some good moments to my viewers today. So हाँ जी. before we moving forward, as a professional introduction, I would really like to tell my viewers about you. Parvinder Singh ji was one of the 5 finalists of the Great Indian Laughter Challenge 2017, which has paved his way to success with his utter wit and humor. He may not have won the title but has won many hearts, popularly called as Amritsar ka Gabru in the show. Parvinder is an engineer turned comedian who can make people laugh effortlessly at his joke. He was working with a private company before he got selected for the show. Even in his schools and college, Parvinder had an artistic knack. He was a theater artist, a comedian, and an actor. In the later part of his job, when he realized that this is not meant for him, and he really wants to contribute to the artistic society. Since then, there is no looking back. He recently got featured in ZTV reality show Dilli Darlings, and he's touring his stand-up comedy special "Main Karna Hai Ye" in India and overseas. So, ladies and gentlemen, help me welcome Parvinder Singh ji. Parvinder ji, thank you once again for Thank you so much, sir. Thank you. sharing. So I really don't want to start with my questions first. I really want you to just give your knack to the audience so that they can see that you are really present here. नहीं, बिल्कुल आपने इतनी तारीफ कर दी मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं दो चार और आने हैं कॉमिक. बट नहीं, वैसे लाफ्टर का डोज तो चल रहा है आजकल काफी. मतलब स्टैंड अप कॉमिक्स की दुकान बंद हुई तो देयर इज ऑलवेज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देयर आर अपॉर्चुनिस्ट्स जो फटाफट ही अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं. सो वन ऑफ देम इज नेशन वांट्स टू नो. Correct. वो आदमी से बड़ा बड़ा जो कोई है ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडियन. Neil Paul is saying मैं नस काट लूंगा. Kapil Sharma is number 2 right now because news channel. So great. Can we have your dedicated punchline and a start with your your जब से मैं रात को 9 बजे रिपब्लिक टीवी लगाता हूँ, 9:10 पे मेरे अंदर से आवाज आती है. मैं कहा ये इतनी कॉमेडी कर रहा है, मेरा दिमाग फट गया. मैं कहा मैंने करना है ये. Great. So what I read just now, was your professional introduction. ये आपका एक professional introduction था. कोई भी इसको इंटरनेट से पढ़ सकता है. मैं जानना चाहता हूँ आपकी अपनी कहानी. Who is Parvinder Singh from you, from your childhood till what all great things you have achieved, your journey of learning, struggle, and how you really made it? जर्नी तो अभी चल रही है, अभी खत्म कहाँ हुई है जर्नी. लाइफ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग. True. तो चल रही है. मतलब अभी तो एक कंपटीशन किया है, एक टीवी शो किया है, अभी तो बहुत सारे करने हैं. अभी तो मूवीज आने वाली हैं, वेब सीरीज लिख रहा हूँ एक मैं, वो आने वाली है. तो अभी तो अगले साल के लिए एक्साइटेड हूँ मैं थोड़ा सा कि कोरोना खत्म हो एंड हम इंडिया बाउंस बैक, हम थोड़ा बाउंस बैक करें. True. And then I will be also super excited to have you again on my show and we'll share all that journey. So ये हादसा कब हुआ आपके कॉमिक के हिसाब से? नहीं, ये हादसा ये कोविड जब शुरू हुआ है मार्च से, तब से वही पहला 1-1.5 महीना तो ऐसे ही निकला है कि ठीक है पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, उठ गए सो गए, नहीं करे.
पबजी खेल लिया, टिकटॉक के वीडियोस देख लिए, एंड देन 1-1.5 महीने की वो जो होती है ना करने के बाद, अब इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, थोड़ी ब्रेक ठीक है, उसके बाद वो ट्रैवल अंदर से ना वो होना शुरू हो जाता है कि घर से बाहर नहीं निकल रहा है, बालकनी में जा जाके देख रहे हैं कि शायद कोई अनाउंस करने आ जाए कि नहीं कोविड खत्म हो गया है। कि न्यूज वाले तो कर नहीं रहे, न्यूज पेपर भी नहीं कर रहे, शायद को सड़कों पे ही आ जाए कि नहीं कोविड खत्म है, आ जाओ तुम लोग सब बाहर नाचेंगे। तो वो फ्लाइट नहीं ली पिछले 8 महीनों से। हाँ। वो अब ये है कि वो इतना मेरे को आलस आना शुरू हो गया ना। पहले होता था कि एक शो करने जाना है शाम को हैदराबाद, सुबह चंडीगढ़ से निकले हैं, फिर दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली से फ्लाइट लिया हैदराबाद गए हैं, वो रश रहता था, वो इतने लोगों से मिलते थे, होटल गए, चेक इन किया, तैयार हुए, शो किया, वापस आए, अच्छे से वो ड्रेन आउट किया, सोए। अब मुझे सिर्फ अपने ये वाले स्टूडियो में आने पे भी, ये जो सेटअप है ना, इतने में भी आलस आ रहा, कौन तैयार होके यहाँ आएगा। फिर लगाओ कोई छत वत पे कैमरा लगाओ, वहीं से जूम इन कर ले, लेटे लेटे, हाँ क्या कह रहे हो। एक ये चीज चेंज हो गई है कि ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि देयर इज अ पैंडेमिक गोइंग ऑन एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। तब तक रेस्ट कर लो, मतलब आगे सारी जिंदगी काम करना है, पीछे सारी जिंदगी काम किया, अभी टाइम है, रेस्ट कर लो। A good observation of the pandemic. Great. अच्छा, जब भी नॉर्मली हम कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, कुछ आउट ऑफ द ब्लू जाके करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी हिंड्रेंसेस आती हैं, मम्मी पापा की तरफ से क्वेश्चनिंग आती है, हर तरफ से। तो अपना अब हमारे साथ क्या रहा? वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि वो जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उसमें मिलाने, एल्केमिस्ट का डायलॉग है बेसिकली, एल्केमिस्ट में था दैट द एंटायर यूनिवर्स विल कंस्पायर। तो वही होता है, मतलब जब भी तुम कुछ करना चाहते हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द लीग जाके, तो देयर इज दिस यूनिवर्स कॉल्ड सोसाइटी जो जो तुम्हें वापस, तुम कैसे बाहर निकल रहे हो, वापस आओ, है इसकी शादी नहीं होगी, है ये चुटकुले सुनाते हैं, करेगा क्या है। अपने बच्चे को देख लो यार, वो नशे कर रहा है, वो ड्रग्स कर रहा है, सही बात है। आप पी के कॉलेज के बाद लड़कियां छेड़ रहा है, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है, वो सुबह 9 बजे ठेका खुलवाता है। ठीक। अपने बेटे पे किसी को ध्यान नहीं देना, हाँ ये क्या करता है। करेक्ट। No, it really happens. But सबसे बड़ा चैलेंज कोई ऐसा दिमाग में आता हो, मम्मी पापा का या किसी का, बिकॉज यू आर वर्किंग, आप उस टाइम जॉब कर रहे थे। वो कोई ऐसा चैलेंज होता नहीं है कि यू कांट ओवरकम। There is nothing like अगर घर वाले भी हैं तो there is always a communication that you can do it with your parents, and वो समझते हैं चीज को। immediately नहीं समझते, after 6-7 months समझते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन पूछना का और एक मकसद है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो करियर सिलेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो कुछ पैशनेट चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे, जो शायद आपने लिया गट्स के साथ। उनके लिए क्या मैसेज है? I was good जब मैंने सब जॉब छोड़ी, सब छोड़ा, तो आई डिड नॉट पिक कॉमेडी एज अ करियर व्हेन आई वाज लाइक मेरे को चॉइस है कि मैं 10th करूं, मैं 12वीं करूं, या मैं कॉमेडी परस्यू करूं। सी वो एक लर्निंग प्रोसेस है कॉमेडी, 2 या 3 साल का हर चीज है, मतलब इंजीनियर भी एक दिन में नहीं बनता, बंदा MBA भी 2 साल लगते हैं, में एक बेसिक वो क्या होता है, वो डिप्लोमा भी होता है ना, ITI का, नर्सिंग का, या कंप्यूटर ठीक का, इवन मोबाइल रिपेयर करने का, वो भी 1-1 साल लेता है, 6-6 महीने, 1-1 साल। तो कॉमेडी इज अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशन जहाँ पे लाइक एक्टिंग इन कॉमेडी, कि वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। इफ यू वंस पिक इट, म्यूजिक है, म्यूजिक में आपको डेडिकेशन देनी पड़ती है, लाइक रियाज करना पड़ता है, गागल्स करने पड़ते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट in music. Agar if anybody of the viewers is any of the listeners right now was music as a career opt करना चाहते हैं, तो be prepared कि musicians की life हनी सिंह के गाने जैसी नहीं होती। ठीक है, even हनी सिंह life is not like his own songs. True. तो वो बहुत हार्ड वर्क एंड बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, ऐशो आराम खत्म होता है, I mean you have to, लग्जरी खत्म होती है आपकी अपनी, आप मर्जी से खा नहीं सकते, मर्जी से पी नहीं सकते, आपको गले का वो ध्यान रखना पड़ता है, and there are million things. Similarly in comedy also you have to be updated with everything. ये आर्ट है, 10 साल पहले सुनील पाल was
स्टाइल ऑफ कॉमेडी चल रहा था, राजू श्रीवास्तव स्टाइल ऑफ कॉमेडी चल रहा था, अभी वो खत्म हो गया है, अभी वो डिफरेंट स्टैंड अप कॉमेडी जॉनर आ गया है, नेक्स्ट 10 साल बाद कुछ और आ जाएगा, क्योंकि यू हैव टू कीप अपडेटिंग। ट्रू, आपका ट्रू, फोन 6 महीने में एक बार अपडेट होता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लैपटॉप 2 महीने में एक बार विंडोज अपडेट होती है, तो ट्रू, यू नीड टू सब अपडेट। अपडेट होता है। गुड। सो अब तक की सक्सेस को अगर हम इवैल्यूएट करें, तो आपकी कौन सी ऐसी टॉप 5 लीडरशिप क्वालिटीज या स्किल्स हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? लीडरशिप तो है ही नहीं ना मेरे में, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं खुद इतना आलसी हूँ, मैं दूसरों को क्या ड्राइव करूंगा अपने साथ। मेरे में एक स्किल है कि मतलब मुझे एक तो होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन है कि ये मैं नहीं कर नहीं सकता। हो। बट अगर सामने से ऐसे अच्छे पैसे आ रहे हो ना, तो मैं ले लेता हूँ, मैं काम इधर उधर से 2 लोगों से करवा के फिर उसको ओवरलुक करके प्रूफ रीड करके आगे भेज दो। किसी ने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी है, मेरे पास नहीं है टाइम, मैंने फिर भी अच्छा बेहतर पैसे मैंने चलो दे दो, मैं आगे से आउटसोर्स कर देता हूँ। तो वो मुझे अच्छे से आता है, इफ आई नो कि हाँ ये टाइप की चीज है, तो उस टाइप का बंदा ढूंढना, दैट इज मेरा एक वो एक शार्प आई जिसे कहते हैं, कि मुझे पता है कि ये चीज वही एक बंदा कर सकता है, तो उसको मैं ढूंढ लाता हूँ। गुड, वेरी गुड। सो एक और चीज, नाउ इट लाइक यू सेड कि इट रिक्वायर्स डेली अपडेशन, करेक्ट? हर दिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही करना है थोड़े टाइम के अंदर। I am not much aware about this industry as a whole, how people prepare. So if हाँ I जी, want you to give me certain elements कि आप अपने आप को अपडेट करने के लिए कैसे आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन से होते हैं, बुक पढ़ते हैं? मेरी स्टोरी टेलिंग होती है मोस्टली, तो जोक लिखने का एक पूरा प्रोसेस है। लोगों को लगता है ऐसे जोक ही तो है, ऐसे बात ही तो करनी है, नहीं कर पाते। बड़े बड़े लोग जो आप देखना, यारों दोस्तों में बैठते हैं ना जब ऐसे ग्रुप में, तो वो बहुत फनी होते हैं, बट जैसे ही उनको आप स्टेज पे खड़ा कर दोगे वो खत्म हो जाते हैं, वहां वो तो कुछ बोल नहीं मजबूरी भी पाते। होती है ना। हाँ जी, तो वो तो मजबूरी भी है ना, दोस्ती यारी में हंसना है, वरना वो बुरा मान जाएगा। नहीं, दे आर एक्चुअली फनी। अच्छा। हमें भी लगता है कि यार ये कितना फनी बंदा है यार, ये मतलब ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ऐसे मतलब पेट में दर्द करा दे, बट स्टेज पे नहीं कर सकता। सो इज जो एन आर्ट। दिस इज एन आर्ट, ट्रू, मतलब ट्रू, यही एक ट्रू, आर्ट है। ट्रू, 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 ट्रू। ओके। तो सो अगर हम समझते हैं हर एक की जिंदगी में, जब एक इंसान लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करता है या कुछ कुछ यूनिक चीजें करता है, तब बहुत बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि हमें आगे का एक फ्यूचर नहीं दिख रहा होता, और बहुत बार हम खुद अपने आप में, चाहे हम कैसे भी परसीव कर रहे हो लोगों के सामने, कैसे भी पोजीशन कर रहे हो अपने आप को, लेकिन दिमाग में बहुत सारे शक, क्वेश्चंस चलते रहते हैं, और ट्रू, फिर हमारा गट्स हमें एक बाउंस बैक करने के लिए मोटिवेट करता है। आज जब इंडिया बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स के लिए कि परविंदर सिंह जी की जिंदगी का बाउंस बैक मोमेंट क्या था? बाउंस बैक था जब वही एक होता है कि आप जॉब वॉब छोड़ते हो, चीजें शुरू करते हो, तो आई वाज अर्निंग अ गुड सैलरी। वो एक था कि वो एक बोरियत आ जाती है लाइफ में कि यार नहीं, यार नहीं करना, मैं मतलब आई वाज अर्निंग गुड, आई वाज हैप्पी विद माय जॉब, बट वो एक अंदर से एक चीज जो मिसिंग होती है, वो करने के लिए आई आई डिड नॉट लीव माय जॉब इमीडिएटली व्हेन आई स्टार्टेड कॉमेडी, बट स्टिल लाफ्टर चैलेंज जब खत्म हुआ था, आई वाज अमंग्स द टॉप फाइनलिस्ट, एंड उसके बाद भी इतना वो, बिकॉज़ द शो वाज नॉट अ बिग हिट, मतलब वो ग्रैंड सक्सेस हुआ है बाद में जब वो लोगों ने हॉटस्टार पे देखा है, बट टीवी पे जब चल रहा था तो इतना वो आया नहीं, एंड इमीडिएटली इतना नेक्स्ट वर्क भी जनरेट नहीं हुआ, एंड नेक्स्ट टीवी शोज के इतनी जल्दी ऑफर्स नहीं आए। तो वो एक 5-6 महीने का जो थॉट प्रोसेस था, 5 महीने लगे ये रियलाइज करने में कि नाउ लेट्स गेट टू यूट्यूब, एंड फिर यूट्यूब पे वीडियो डाला, वो भी 1 महीना लगा उसको पिक होने के लिए, बट आफ्टर 6-7 months आई मीन माय कॉमेडी करियर बाउंस्ड बैक। मतलब लाफ्टर चैलेंज के 6 महीने बाद तक मेरे पास ऐसे इंस्टेंट को इतना ज्यादा काम नहीं था, बट वो एक टाइम लगा प्रोसेस जनरेट टाइम करने लगा, में, बट हाँ इट्स हाँ, फाइन। वो एक विजिबिलिटी लाने में और वो चीजों को पहुंचाने में टाइम लग हाँ जाता जी, बट वो कहते हैं ना कि अरे टीवी पे आए हुए हैं, लोगों को लगता है कि अरे टीवी पे आया है तो वो, है। बट आई गॉट माय शेयर ऑफ मेजर शेयर ऑफ माय केक फ्रॉम यूट्यूब। फ्रॉम यूट्यूब।
हाँ जी, Good. my Good. YouTube videos. So that 6 months was a kind of a bounce back period for you, where you were हाँ जी, trying to emablish your career. हाँ जी, हर दिन नया थॉट आ रहा था कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नए टीवी शोज के पास चले जाते हैं, हर चैनल के पास उस टाइम मैं गया हूँ, ईमेल्स करे हैं, फोन्स करे हैं कि कुछ कर, मेरे को भी ले लेना, मेरे को भी कर लेना। बाद में रियलाइज हुआ यार, मतलब खुद का चैनल जब बड़ा हो जाएगा तो यही फिर अपने खुद आप कॉल करके invite बुलाएंगे। करेंगे. Now that's, I think, viewer, that is also a great strategy. Either you go and push yourself to the people, or you create, if you believe in your talent, अगर आपको अपने talent पे, अपनी comedy पे, अपने हुनर पे भरोसा है, और आप अगर उसके लिए एक positioning और एक marketing अच्छे से create करते हैं, you will pull people towards you, and I think which Parvinder ji has done rightly. So next question to you, अब तक की डिलीवरीज के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या कोई यादगार परफॉर्मेंस? काफी ऐसे बढ़िया शोज रहे हैं, मतलब एक शादी करी थी मैंने, शादी का शो करा था मैंने हरियाणा में, एंड शादी का शो जब भी होता है ना, तो हमें होता है कि कोई नहीं सुनेगा। इट्स लाइक उनसे पैसे ले लो, बस इतना क्या होता है, जाना है, शक्ल दिखानी है, थोड़े फोटोज खिंचवाने, 10 मिनट स्टेज पे जाना है, एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग अबाउट इट। एंड मैं उसी माइंडसेट से गया था, मैं गया रूम में, जाके चेंज किया, नीचे रिसेप्शन थी, तो मैं वहां पे गया, एंड एक होता है ना कि थॉट प्रोसेस कि मैं तो 10 मिनट में फ्री होने वाला हूँ, मैं मैसेज पे बात भी कर रहा हूँ, अरे 15 मिनट में, हाँ कैब वाले को बोल रहा 15 मिनट में निकल रहे हैं पाजी, हम टेंशन मत लो आप। तो मैं नीचे पहुंचा हूँ, उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से रिसीव किया, मैं गया हूँ, एंड वहां पे रिसेप्शन है किसी की, एंड फॉर दैट 1 आवर जो वो शो था, पूरी फैमिली ऐसे थिएटर स्टाइल सिटिंग में बैठी है, ऐसा लग रहा है दैट इट्स वो लॉन के अंदर कि वो प्रॉपर शो स्टाइल में बैठे हुए हैं, एंड उनकी फैमिली के 2 लोग हैं जिन दे मेड श्योर कि एवरीबडी, के वो हरियाणा के एक वो हिसार था, बहुत छोटा सिटी था, हिसार था, एंड वहां पे दे मेड श्योर कि हम यहाँ पे आज एक्सपीरियंस देंगे सबको, एंड उन्होंने सबको ऐसे खुद बिठाया हुआ था मेरे आने से पहले, एंड दे अनाउंस्ड मी लाइक इट्स प्रॉपर कॉमेडी शो। एंड ये मेरे लिए एक शो था कि मेरे जो कहते हैं ना कि कभी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना चाहिए, थिंग्स कैन चेंज ऑन द गो, दैट इज आर्टिस्ट लाइफ ऑल अबाउट, आर्टिस्ट लाइफ ही ऐसी है। तो उस टाइम मैंने शो किया, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा शो एक्सटेंड हुआ, कि मैंने लोग बातें करनी शुरू कर दी, आई वेंट डाउन स्टेज, मैं अपना नीचे उनसे बातें कर रहा हूँ, सारी ऑडियंस से जा जाके क्वेश्चंस पूछ रहा था कुछ चीजों के, तो वो मजा, इतना ज्यादा मजा आया था कि मैं जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते उससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो जाता है। And as an artist you also feel great about it. हाँ जी, you know people really value. Good. So now something, I want to just pause here with my question, and I want something for my viewers now, something new. Something new. मैं एक ना जोक पे काम कर रहा हूँ विच इज ऑन रैपर्स, के रैपर्स जो लाइफस्टाइल पहली बात तो कर रहे हैं, लोगों को लगता है जो रैपर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना, उनको लगता है कि यही लाइफस्टाइल है। लाइक बैलेंसियागा की जैकेट्स पहनते हैं, वो खुली लंबी, वो 1.5 लाख की एक जैकेट है, वो सिंगर एक दिन पहन सकता है, देखो। बट ये जो वॉनबी लड़के जितने भी दिल्ली के हैं, दिल्ली जाके तो देखो एक बारी गफार मार्केट है, 90% गफार मार्केट बैलेंसियागा से भरा हुआ है। तो दिस इज द जोक आई एम वर्किंग अपॉन, कि इतना नकली ब्रांड आ चुका है कि अगर मैं पूरा बैलेंसियागा जोड़ू ना, उनका सारा ओरिजिनल का प्राइस जोड़ लूं, तो बैलेंसियागा ने आज तक इतने कपड़े बनाए ही नहीं जितने बैलेंसियागा जैकेट्स बनाता है, बैलेंसियागा जैकेट्स बनाता है, टी शर्ट्स बनाता है। गफार मार्केट में बैलेंसियागा के कच्छे छपे हुए हैं, बॉक्सर्स पे बैलेंसियागा के पट्टियां लगा के घूम रहे हैं वो। इवन केजरीवाल इज लाइक यार, मैं मतलब बैलेंसियागा, सारा बैलेंसियागा इकट्ठा करा है मैंने, दिल्ली के बजट से ज्यादा है। वो धरने पे बैठ के कहता है यार ये मतलब ये सब मोदी जी की साजिश है, बी से बीजेपी, बी से बैलेंसियागा। एंड अमित शाह इज लाइक नहीं, पहले देखो दिल्ली में आप आई, फिर दिल्ली में बैलेंसियागा आया, क्रोनोलॉजी सुन। ओके, सो बैन करो इसको है। हाँ नहीं, वो एक वानबी कल्चर आ रहा है। आई हेट रैपर्स बिकॉज़ ऑफ दिस, कि वो एक वानबी कल्चर लेके आ रहे हैं। अपने घर पे भी ऐसे थोड़ी बात करते हैं कि मम्मा व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। टू पैक को कॉपी करना है तो ढंग से तो कर लो। करेक्ट।
Good, good, good. Now moving to the next round, it's a rapid fire round. Okay. हाँ जी. Something. I will just speak a word. जो भी पहला वर्ड या सेंटेंस आपके दिमाग में आता है, आप प्लीज उसको शेयर कीजिए. नहीं, रैपिड फायर के से मेरे दिमाग में हैम्पर आ रहा है. मिलता है, मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है. कोरोना खत्म होते ही आपके पास पहुंच जाएगा. मतलब सीधा ना भी कह सकते थे आप. नहीं, हमारा हैम्पर पक्का पहुंचेगा, बस कोरोना की वजह से रुका हुआ है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट वर्ड, इंडिया. And people will expect the great response from you. On the way of Vikas. On the way of Vikas. Okay. Comedy. होने वाला है विकास, होगा. 6 साल हुए हैं अभी. वेट करो 4 साल और वेट करते हैं. मैं करूंगा. ठीक है. विकास होगा. तेरी अपनी हंसी नहीं बंद हो रही है बोलते हुए. Second, comedy. करियर. The Great Indian Laughter Challenge. अक्षय कुमार. और मैंने जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ये वाला किया है तो फॉर मी इट वाज अक्षय कुमार. बट ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सुनते ही सबसे पहले दिमाग में नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं. और मेरे दिमाग में अक्षय कुमार. I'll justify. Okay, family. Life. Education. कर लो. Okay. Self-made. सिद्धू मूसेवाला. Okay. मामे चाचे आंदे सिरा ते नहीं उड़दे. उसका गाना है एक्चुअली में. तो whatever he believes in वो गा देता है. मतलब वो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना उसको. हाँ भाई. Okay. About this initiative, India Bounce Back. It's very necessary. कितनी नेगेटिविटी चल रही है मार्केट में. वेरी नेसेसरी. नेसेसरी इज द वर्ड. रैपिड फायर के बैन बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइम आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लो सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रही है. चाहे न्यूज़पेपर उठा लो. आज का न्यूज़पेपर अभी मैं ले आता हूँ, द ट्रिब्यून. उसमें 90% न्यूज नेगेटिव है. पॉजिटिविटी तो कोई न्यूज है ही नहीं ना. अच्छा काम कर नहीं रहा दुनिया में. चाकू मार रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, वही हो रहा है. ट्रू. और सारे लोग अभी मिस्ट्री सॉल्व करने में लगे हुए हैं. हाँ. So, okay, moving to the next phase now. The next question is, आपने ऑलरेडी थोड़ा सा जिक्र किया कि कोविड टाइम में कुछ टाइम तो ऐसे ही चिल आउट निकल गया, रेस्ट करते हुए. इस वक्त के अंदर ऐसा क्या आपने सीखा? क्योंकि ये पैंडेमिक में ना बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, कभी भी जिंदगी में चेंज आता है तो चेंज या तो ग्रोथ लाता है या ग्रीफ लाता है. वो इंसान के ऊपर है वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है. करेक्ट. या तो ग्रोथ आएगी या ग्रीफ आएगी. बट इस पैंडेमिक में, इस लास्ट 5 महीनों में आपने पर्सनल लेवल पर क्या सीखा और ये कोरोना ने आपको क्या सिखाया? मैंने एक चीज तो बड़ी फनी सीखी है कि ये जो एक एज के बाद जो लोग होते हैं ना 70-75 प्लस, नो ऑफेंस, बट इनको एक चीज ये पढ़ लेते हैं, ठीक है. एंड दे वर बिजी. कोविड शुरू होने से पहले दे वर बिजी इन देयर लाइव्स. वो सुबह जाते थे, 8 बजे आते थे. एंड 8 बजे के बाद ना उनको लगता था कि हाँ यार मैं अब रेस्ट कर लूं, मैं सो जाऊं, मैं खाना खा लूं. अब वो हो गए वेले. एंड अब उनको हर चीज की टेंशन है दुनिया में. तो देयर इज दिस अंकल इन माय सोसाइटी. वो क्या करते हैं, उनसे गाड़ी बैक होके ना ढंग से निकलती नहीं. तो ही इज लाइक, तुम गाड़ी जब पार्क करते हो तो ऐसे पार्क किया करो कि मेरी गाड़ी एक बारी में निकल जाए, मेरे को 2 बारी आगे पीछे करनी पड़ती है. ओके. अंकल फाइंड अ जॉब. तो दिस इज व्हाट आई रियलाइज. लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है नहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, खाली बैठे क्रिएट कर लेते, वेले बैठे हैं. चलो So this is a साफ कर लेते हैं. अगर पंखा तो है नहीं घर में, एसी घर है, कहते कोई बात नहीं, पहले पंखा लगवाएंगे फिर साफ करेंगे. Okay. तो पेटियां साफ करी जा रहे हैं निकाल के. अरे मजा आ गया भाई. So next question. अभी आप देख रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड न्यू नॉर्मल की तरफ, जिसको हम बोल रहे हैं, सब
बिजनेसेस अपने तरीके से, इंडिया अलग अलग इकोनॉमी, अलग अलग सिस्टम्स अपने अपने तरीके से न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉमेडियन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो कि आज एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे भी ऑपरेट हो रहे हैं, आप क्या देखते हो आने वाला वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए? क्या नई नई चीजें आ रही हैं और क्या नए तरीकों से आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जो चीजें आप शो ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर स्टेजेस पर इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करके करते थे, वो आने वाले बहुत मतलब कुछ समय तक तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है? कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मूव हो रही है और आपको क्या दिख रहा है नई नई चीजें? अभी अभी फॉर टाइम बीइंग वर्चुअल हो गई है सारी इंडस्ट्री, एंड देयर आर न्यू वेज कमिंग आउट. दिस इज नॉट द न्यू नॉर्मल फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. एंटरटेनमेंट आप घर पे बैठ के ले सकते हो, तो टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो. लाइव शो देखने का कोई फायदा नहीं है. फायदा है बट जब आप बाहर नहीं जा सकते. इफ यू कैन गो आउट वैक्सीनेशन के बाद, तब कोई भी वर्चुअली, मतलब आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी सेंस फॉर पीपल कि वो सेम शहर में हैं एंड वो आना जाना अवॉइड करें. हाँ, कोई डिफरेंट शहर है, जैसे कोई छोटे शहर हैं जहाँ कॉमेडी शोज नहीं होते, ट्रू, तो वी कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो, जैसे अभी कोई आसनसोल में है, आसनसोल में कॉमेडी शो हुआ है, या हल्द्वानी है, या लेट्स से त्रिवेंद्रम है, वहां से कोई ज्वाइन इन करना चाहते हैं, या मैसूर में इन्फोसिस का कैंपस है, तो देयर आर लॉट ऑफ इन्फोसिस के पीपल हु ज्वाइन इन फ्रॉम देयर, इंजीनियर्स. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि उनको स्पेशली बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे आके शोज अटेंड नहीं करने. इफ दे वांट टू लुक एंड फील के कॉमेडी शो कैसा होता है, they can attend it from their home. So this way I think it's थोड़ा a सा better होता है. opportunity for both viewers Yes. also, and a presence of a artist also is getting हाँ जी. increasing So in every, one thing that will become a new normal is a live show will be streamed. streamed. Yes. Yes, तो yes, मैं yes. अपने लाइव शोज, जैसे 200 लोग बैठे होंगे, उसमें कैमरा भी होगा, हम स्ट्रीम भी करेंगे. if you don't want to come, घर से बैठ के ज्वाइन इन कर लो. Join in kar lo. Correct. That can be there. Okay, now how confident you are that India will bounce back? इंडिया कर लेगा. इंडिया स्पिरिट अच्छी है इंडिया की. इंडिया में ना अच्छे लोग बहुत है. न्यूज चैनल्स एंड मैं उनके पीछे पड़ गया हूँ न्यूज चैनल के, क्योंकि इतने 7 महीने से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं दिखा रहे. एंड न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिशियंस, ये मिलके भी इंडिया के स्पिरिट डाउन नहीं कर सकते. बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं. अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिविटी भी बहुत है इंडिया में. Okay, good. Your future projects for my viewers, to let them know. एक वेब सीरीज लिख रहा हूँ मैं. उसके बाद 2 पंजाबी मूवीज कर रहा हूँ जिसमें कैरेक्टर है मेरा छोटा, मतलब नॉट कमिंग एज अ हीरो. Good. और 2 पिक्चर्स के डायलॉग्स कर रहा हूँ. 2 मूवीज के डायलॉग्स लिख रहा हूँ. Wow. बस अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो आने वाली है YouTube चैनल पे, बचपन का सुपर हीरो, वो जरूर देखना. Bachpan ka superhero. I think this is for all my viewers. Do watch. We will share the link in our YouTube once as and when it comes. बचपन का सुपर हीरो. Bachpan ka superhero. Sure. Before leaving, before ending this wonderful interview, something from नहीं मैं करना है. मैं बचपन का सुपर हीरो में से ही एक छोटी सी बिट सुना देता हूँ आपको. Sure. तो उसमें एक है कि माय चाइल्डहुड सुपर हीरो वाज सुनील शेट्टी. Okay. फॉर वन रीजन कि वो आदमी ने बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करी है. बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार किसी हीरो ने दोनों हाथों से गाड़ी उठाई है. मतलब बिफोर सुनील शेट्टी नोबडी इवन हैड अ थॉट ऑफ डूइंग इट. एंड वो सीन है वक्त हमारा मूवी का. वक्त हमारा मूवी में ममता कुलकर्णी की कंटेसा पंचर है, वो साइड पे गुलशन ग्रोवर से जैक मांग रही है, ये साइकिल पे जा रहा है, इसने साइकिल रोका है, तेल लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, यहाँ तक शर्ट बंद करी हुई है, छिड़ती हुई लड़की देखी है, टायर पंचर देखा है, प्रायोरिटी है मेरे भाई की, दोनों हाथों से गाड़ी उठा ली. वो छिड़ के आई है, 5 मिनट बाद तेज तेज टायर चेंज कर रही है. उसको डायलॉग मार रहा है, कहता मैडम आराम से, तो नहीं जाओगे, गाड़ी एक हाथ पे कर ली. कहता अच्छा. मैंने देखा, मेरा दिमाग फट गया, मैं कहा मैंने करना है ये. उतरे में मम्मी की बात आई. मम्मी कहती पुत्र दीवान का टीवी बंद कर, दीवान का फ्लैप उठा, मुझे अंदर रजाइयां रखनी है. दीवान तो आपको पता ही होगा हमारे घर, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है. पूरा ब्रह्मांड होता है. मैंने दीवान का फ्लैप उठाया. मम्मी तेज से, मैं कहा मम्मी आराम से. मम्मी कहती थक तो नहीं जाएगा. मैं कहा अच्छा. हल्का सा माथे पे पसीना आया 2 मिनट बाद.
फिर एक चीख निकली। मम्मी की 2 उंगलियां टेढ़ी हो गई। बाकी का जोक वीडियो में सुनना, वीडियो में देखना। Wow, that's amazing. Okay, so now last but not the least, your 5 messages, your 5 strong messages for the entire country. स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, मतलब ये जरूरी है बहुत ज्यादा, एंड नेगेटिविटी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। एंड ये तो आई थिंक द नेशन नोज नाउ। True. True. The nation knows. The nation knows now. Already knows. Yes. कि किस नेगेटिविटी से सबसे ज्यादा दूर रहना है आपको। एंड चौथा मैसेज मेरा होगा कि पैशन ठीक है, मतलब अगर आपका पैशन आपको पैसे कमा के दे रहा है ना, तो ही उसको फॉलो करो। मुफ्त में ऐसे वो करने की जरूरत नहीं, आर्ट एक्सप्लॉइट मत करो। पैसा कमाना बहुत जरूरी है लाइफ में। इवन इफ यू वांट टू फॉलो, साथ में करो जब तक वो फुल टाइम करियर नहीं बनता। तो ऐसे छोड़ छाड़ के सब बॉम्बे में चले जाओ कि हाँ मैं 4 साल स्ट्रगल करूंगा। तो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। 5वां बी रिस्पॉन्सिबल हो गया। बी रिस्पॉन्सिबल एंड खुश रहो एंड keep watching Parvinder Singh's YouTube videos. Subscribe, like, share, वो सब कर देना। Thank you so much for this wonderful and so much, inspiring interview. Wonderful, and it will bring a lot of energy, a lot of smiles on the people. Yes, thank you so much. We wish you all the best from the entire team of India Bounce Back. You bounce back and you rock and you make people laugh as you are doing it. Thank you so much. Yes, and thank you so much. Thank you. Wonderful. And viewers, India will bounce back, and stay tuned for another episode of India Bounce Back with another eminent personality to inspire you to bounce back. Thank you once again. Bye bye. Bye bye, sir. Bye bye. Thank you. Bye bye.